जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ, तू आ जा दे। 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 ओ यीशुआ, तू आ जा दे। 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 मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा। देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ मैं निवात मेरा, कोई रब है उच्चा, ते जिन्ने नीवे आना लन बाइया होए। हो सदके जावा ना उच्चियां दे, ते जिन्ने असां दे नाल लन बाइया होए। वादा किया उसने बख्शी के साथ, वादा किया उसने बख्शी के साथ। स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको बेटा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की यीशु मेरा लाल रोटी आने वाला है, हर लोग तैयारी बुलाने वाला है।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। हालेलुया। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਲਹਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਾ ਲੈਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਏ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਲੀਕ ਕੇ ਗਏ ਕੁਛ ਰਸਤਾ ਦੇ ਗਏ ਕੁਛ ਪੰਧ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं अज अपने वालों अपने परिवार वालों अपने दोनों भाई साहबानों उन्होंने पूरे परिवार में ते आई हुई संगत नूं प्रभु यीशु दे अज क्रिसमस डे दियां लख लख मुबारकां दिना और प्रभु यीशु के चरणों में बेनती दुआ अरदास करना है कि सारे संसार नूं खुशियां खेड़े उन्हां दीयां मन्नतां उन्हां नूं अच्छा जीवन जीउण लई रस्ता दिखाते रहन मार्गदर्शन करते रहन। जय मसीह दी धन्यवाद। दिन परमेश्वर फिर यीशु मसीह उनके साथ घूमे उन्होंने मैसेज दिया कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब तो विश्वास करो मुझ पर कि स्वर्ग और नरक की कुंजियां सिर्फ मेरे हाथ में है। मैं वो कर सकता हूँ जो मनुष्य नहीं करता। मनुष्य मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। मनुष्य अंधे को 1 सेकंड में आंखें नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूँ। यीशु ने साफ कहा कि जो मनुष्य कर सकता है, जो मनुष्य नहीं कर सकता है, सॉरी जो मनुष्य नहीं कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ। यूहन्ना 1:14
और वचन देहधारी हुआ, और वचन वही वचन जो आदि में था, जिससे सारी सूर्य चंद्रमा धरती तारागण सब कुछ बना, वही वचन देहधारी होकर हमारे विचकार में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसको प्रकट किया। इसका मतलब है कि जैसे लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो साथ था। यीशु, यहोवा और पवित्र आत्मा तीन थे, वो एक नहीं थे। ट्राइन गॉड। जब हम इसको बाइबल को पूरा अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर एक है, उसकी तीन पर्सनैलिटी है, यीशु, यहोवा और पवित्र आत्मा। एक ग्रंथ नहीं, सारे ग्रंथ बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया। ओंकार है पर एक है, हालेलुया। हालेलुया। ओंकार है पर एक है, तीन है पर एक है, हालेलुया। 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 लिखा कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, उस यीशु मसीह ने परमेश्वर की स्वरूप के आके परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर है। अगर यीशु मसीह देह धारण करके नहीं आते तो लोग, हम लोगों को क्या कहते हैं, मसीही लोगों को, कौन से परमेश्वर को मानते हो जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, कोई वजूद नहीं है। हम कह सकते कि हाँ यीशु मसीह का वजूद था, यीशु मसीह ने आकर प्रकट किया अपने आप को धरती पर कि मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि यीशु मसीह का जन्म की तारीख जो बाइबल में लिखी नहीं है कहीं भी। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, क्रिसमस का मतलब तो मैंने समझा दिया। क्राइस्ट मतलब जीसस मांस धारण करके धरती पर आ गया। क्रिसमस डे। रोमन साम्राज्य का एक राजा था, उसका नाम था राजा कॉन्स्टेंटाइन। राजा कॉन्स्टेंटाइन यीशु मसीह के स्वर्गारोहण, मतलब यीशु मसीह के मरने के बाद नहीं, मर के जी उठने के और 40 दिन के बाद उड़कर जाने के बाद यीशु मसीह जिंदा गया है, उड़कर गया है, सबके सामने गया है और पलक झपकते नहीं गया, ऐसे गया है, धीरे धीरे जाते वक्त संदेश देकर गया कि चिंता मत करो, मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे फिर आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस सच्चाई को जान लें, क्योंकि ये सच्चाई आपको सब नहीं बताएंगे। लोग समझते हैं कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन होता है। राजा कॉन्स्टेंटाइन जो है 325 एडी में, एडी मतलब ईसा शेष, यीशु मसीह के बाद। और एक बात आपको और बता दूं, आज कितना साल चल रहा है? 2021 साल के पहले दुनिया नहीं थी। 2021 साल के पहले दुनिया थी तो 2021 क्यों है? बाकी डेट, सन, महीने, तारीख किधर गई? क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ऑल वर्ल्ड में जितने भी कैलेंडर है सारे रद्द हो गए थे, वहां से जीरो शुरू हो गया था। 1 तारीख, पहला महीना, पहला दिन। इसलिए यीशु मसीह का कोई जन्म इसमें दिन नहीं लिखा हुआ। कौन सा दिन लिखा जाए जब कैलेंडर ही रद्द हो गए थे तो? हालेलुया। इसलिए कहा जाता है कि यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले आए। सब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि हम कहते हैं कि एडी और बीसी, एडी बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा शेष। जो 2021 साल के बीच में जो काम हुआ उसको बोलते हैं ईसा शेष। जो 2021 साल के पहले जो भी आए थे उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। हम कैलेंडर में देखते हैं एडी और बीसी यीशु मसीह से बनी। कॉन्स्टेंटाइन 325 एडी में राजा कॉन्स्टेंटाइन जो है उसने, जो कि खुद एक मूर्ति पूजक था, पूरा रोमन साम्राज्य मूर्ति पूजक था, उसमें से जो राजा कॉन्स्टेंटाइन था उसने प्रभु का वचन सुना कहीं से, यीशु मसीह के जाने के 325 साल बाद प्रभु का वचन सुना। उसने मन फिराया कि सही बात है, मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, ये तो पाप कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, रीति रिवाज, जो भी मूर्ति पूजा सब पाप कर रहा हूँ। तो उसने मन फिराया, उसने यीशु को ग्रहण किया। पर उसने अब ये सोचा कि मैंने तो यीशु को ग्रहण कर लिया, अपनी प्रजा को कैसे करूं? अगर मैं सीधा प्रजा को मना कर दूं। 25 दिसंबर जो है उस वक्त रोमन साम्राज्य में सूरज की पूजा होती थी। बोलते थे सूरज का जन्मदिन है, सूरज देवता बोलते थे।
सूरज कोई देवता नहीं है। परमेश्वर ने सूरज को हमारे लिए, मनुष्यों के लिए रोशनी करने के लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। और ये भी बाइबल बताती है कि सूरज बाद में बना, पहले रोशनी बनी। जो साइंटिस्ट, जो विज्ञान के जो स्टूडेंट है वो भी इस चीज को जानते होंगे। साइंटिस्ट इस चीज को मानते हैं कि सूरज बाद में बना, पहले रोशनी बनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले यीशु ने रोशनी को बनाया था, वो सारी रोशनी को इकट्ठा करके सूरज बना दिया था। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह को जब जाना उसने 325 एडी में, तो उसने कहा कि मैं अपना मुंह तो फिरा चुका हूं, मैं बाकी प्रजा को कैसे बदलूं। अगर मैं सीधा डायरेक्ट उसको कह दूं 25 दिसंबर जो पूरे रोमन साम्राज्य में मनाया जाता था, सूरज देवता की पूजा करते थे, अगर मैं मना कर दूं तो वो जो प्रजा है उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसने कहा कि तुम 25 दिसंबर को मनाओ, पर सूरज देवता के नाम पर नहीं, यीशु मसीह के नाम से मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीही लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए कोई दिन नहीं था। इसमें कोई दिन नहीं ऐसा लिखा कि सेलिब्रेट करने के लिए। हर संडे को चर्च होती है, हर संडे को चर्च। स्पेशल कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें कोई सेलिब्रेट करे। तो इसलिए उसने कहा कि 25 दिसंबर का दिन तो निश्चित हुआ ही, पहले सूरज की पूजा होती है, उसको छोड़ो, यीशु की पूजा करो, दिन वही रखो 25 दिसंबर। हालेलुया। हालेलुया। ये है 25 दिसंबर का रहस्य। 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन नहीं था। क्रिसमस डे के अलावा गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं। इसको भी मनाने के लिए कोई इसमें नहीं कहा गया बाइबल में कि इसको मनाओ। गुड फ्राइडे क्या होता है? यीशु मसीह जिस दिन हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, गुड फ्राइडे शुक्रवार था। गुड क्यों कहते हैं उसको, बैड क्यों नहीं कहते? यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, इतनी उनको मार पड़ी, सारा छन्नी छन्नी कर दिया मार के, पर उसको बैड फ्राइडे क्यों नहीं कहा, गुड फ्राइडे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए वो गुड था, हमारे लिए वो खुशखबरी का समाचार था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठाया ताकि हम स्वर्ग राज जा सके, इसलिए वो बैड नहीं, वो गुड था। यीशु मसीह का जो आने का मकसद था वो यही था कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। कोई भी आज तक मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से नहीं जी उठा। जितने आए सारे मर कर ही गए हैं, जिंदा कोई स्वर्ग में नहीं गया। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह है जो जिंदा आए, जिंदा गए। उसके बाद ईस्टर मनाते हैं। ईस्टर का क्या मतलब होता है? जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, द रिजरेक्शन डे। शुक्रवार को यीशु मसीह को मारा गाड़ा गया, शनिवार छोड़कर संडे को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसको बोलते हैं ईस्टर। हालेलुया। हालेलुया। उसकी भी कोई दिन तारीख इसमें फिक्स नहीं है, कोई दिन तारीख नहीं है। यीशु मसीह का इसमें ये बातें इसलिए नहीं लिखी गई क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, और परमेश्वर का जन्मदिन परमेश्वर को नहीं मंजूर कि किसी को पता चले, इसलिए परमेश्वर की योजना से सारे कैलेंडर रद्द हुए थे। हालेलुया। असल में जो एक 3 बातें हैं, एक जो क्रिसमस डे है, एक गुड फ्राइडे है, और एक है ईस्टर। ये तीनों बातें जो है, जब हम लोग प्रभु में आने के बाद जो अंगीकार करते हैं, जो हम बपतिस्मा लेते हैं, उसमें ये तीनों बातों का अंगीकार करते हैं। पहले नंबर पर कहते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो लोग जानते हैं, हम जो बपतिस्मा लेते हैं हम क्या कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए 2021 साल पहले आए, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए। तीसरी बात, और मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को 25 तारीख को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि राजा कॉन्स्टेंटाइन ने कहा था, इसलिए नहीं करते क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा हुआ है कि जो भी करो प्रभु की महिमा के लिए करो। अगर ये हम इसको सेलिब्रेट करें तो भी प्रभु की महिमा के लिए, ना करें तो भी प्रभु की महिमा होनी चाहिए। ये नहीं कि खुद हम नाच ले गा लिया, किसी को यीशु के बारे में बताया नहीं, क्योंकि यीशु चाहता है कि मैंने मनुष्यों को बनाया और मैं चाहता हूँ कि मेरा सुसमाचार जो है हर एक कान तक पहुँचे, ताकि हर एक इंसान को मन फिराने का अवसर मिले, मौका मिले। हालेलुया। अब बात करते हैं सेंटा क्लॉज कहाँ से आ गया। पूरी बाइबल में सेंटा क्लॉज का कहीं नामो निशान नहीं है। ये देखो सेंटा क्लॉज बन के बच्चा घूम रहा है। हालेलुया। इस सेंटा क्लॉज का पूरी बाइबल में कहीं जिक्र ही नहीं है। ये कहां से आ गया फिर?
जो मैंने पहले 280 बोला था, ये है 280 एडी वाला। 280 एडी में मतलब 280 ईसा शेष यीशु मसीह के जाने के 280 साल के बाद एक सेंटा क्लॉस, इसका नाम नहीं, इसका नाम है संत निकोलस। संत था। संत निकोलस नाम का एक व्यक्ति था, और कोई ऐसा नहीं था कि ऐसे लाल कपड़े पहन ले, टोपी पहन ली, दाढ़ी, चिट्टी दाढ़ी, ऐसा नहीं था इसका हुलिया। नॉर्मल था, आपकी और मेरी तरह नॉर्मल था। 280 एडी में इसने यीशु मसीह का ये बंदा था। 280 एडी में इसका जन्म हुआ था, और इसको एक शौक था, पैसा इसके पास बहुत था, बहुत धनी व्यक्ति था। इसका एक शौक था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पर गुप्त रूप में करूं, किसी को पता ही ना चले। तो ये क्या करता था, दिन में सारा दिन घूमता रहता था। एक पेड़ होता था जिसको एक्समैक्स ट्री बोलते हैं, एक्समैक्स ट्री, जिसको क्रिसमस ट्री बोल देते हैं, उसके नीचे शाम में बैठा रहता था, देखता था कि क्या चल रहा है दुनिया में। गरीबों के घर भी घूमने जाता था, देखता था कि किसको पैसे की जरूरत है, किसको तंगी है, किसको परेशानी है। घूमता रहता था, वो नोट कर लेता था कि इसके घर में गरीबी है, इसके घर में इस चीज की तंगी है, ये परेशानी है। तो क्या करता था, रात को जितने पैसे उसको चाहिए, जिस चीज की इसको कमी है, उसको एक गिफ्ट पैक करके रात को उसके सिराने के पास, नहीं तो उसके जूते के अंदर ऐसे डाल के चलाता था। तो लोग कहते थे ये क्या, ये कहाँ से आ गया। ये पूरा मतलब मशहूर हो गया कि कोई ऐसा है जो रात को ऐसे आता है और देकर चला जाता है। ऐसे लोगों को पता चल गया कि ये संत निकोलस है, संत निकोलस। लोग में बात लीक हो गई कि ये संत निकोलस है जो ये काम करता है। उसके बाद जब तक वो जिंदा था तब तक कोई सेंटा क्लॉज को किसी ने ऐसे नहीं, इस रूप में किसी ने नहीं देखा। जब वो मर गया उसके बाद रोमन साम्राज्य ने इसको कहा कि ये सेंटा क्लॉज है। संत निकोलस से जैसे नाम चेंज हो जाता है समय के बदलने के हिसाब से सेंटा नाम रख दिया, सेंटा क्लॉज इसका नाम रख दिया। और इस इंडिया में सेंटा क्लॉज की छवि दिखी पेप्सी के एड ने, ऐसे दाढ़ी मूछें ऐसे लगाकर, तभी से इसी रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, पर ऐसा उसका रूप नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस यीशु मसीह का भक्त था, यीशु मसीह का दास था, यीशु मसीह का सेवक था, यीशु मसीह के इस वचनों को फॉलो करता
हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर खुदावन खुदा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी आज के दिन के लिए सुंदर समय के लिए प्रभु जी आप तक हमें अब तक आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर अपनी हजूरी में हम सबको अपनी महिमा करने के लिए इकट्ठा किया आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी आज हम लोगों ने जो भी प्रभु जी आपकी हजूरी के अंदर प्रभु जी जो भी हम लोगों ने गाया बजाया पिता परमेश्वर जो आराधना की पिता परमेश्वर वो आपको आपके स्वर्ग राज में प्रभु पसंद आया आपको कबूल होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर आज का जो भी वचन बोला गया पिता परमेश्वर मेरे स्वर्ग पिता आज का जो भी वचन बोला गया पिता परमेश्वर यहाँ आए एक जन की जिंदगी में काम करे पिता परमेश्वर ये जान सके पिता परमेश्वर की सत्य मार्ग जीवन केवल आप हो प्रभु जी और ये बचाए जाए पिता परमेश्वर से नरक की आग से। हालेलुया हो मेरे महान परमेश्वर हर जितने आए जन प्रभु जी जितने लोग हैं प्रभु जी हर दुखों से हर बीमारियों से आजाद हुए पिता परमेश्वर हर टोना जादू नाश हो इनकी जिंदगियों से। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर जितने भी जन आए पिता परमेश्वर इन सबको पिता परमेश्वर उस पवित्र लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने हम सबके गुनाहों की माफी के लिए उस सलीब पे बना पिता बहा दिया। हालेलुया प्यारे पिता परमेश्वर आज हर बीमारी हर दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में हर शरीर प्राण को छोड़ के जाए। हालेलुया हर टोने जाने के बंधन टूटे। हालेलुया 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 हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर मेरे स्वर्गीय पिता जितने लोग आए पिता परमेश्वर सही सलामत आए पिता परमेश्वर और सही सलामत पिता परमेश्वर अपने परिवारों में जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप इनकी अगुवाई कीजिएगा स्वर्गदूतों के द्वारा आप इनकी रक्षा कीजिएगा पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जो सब वचन प्रभु जी वो सब वादे इन सब लोगों की जिंदगियों में रिलीज करते हैं यीशु के नाम में आपके दिए हुए अधिकार के जरिए। हालेलुया वो मेरे महान परमेश्वर मेरे खुदावन खुदा एक एक जन बचाया जाए प्रभु जी हर पापों से आजादी दीजिए पिता परमेश्वर हर शराब टूटे यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करते पिता परमेश्वर बीते समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी आने वाला समय आपके पाक पवित्र और जोरावर हाथों में स्वर्ग देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन फिर बोलेंगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾਜ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। आमीन ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ आमीन हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह की जय प्रभु यीशु मसीह की जय जो जिंदा परमेश्वर है जो जल्दी आने वाला है हालेलुया 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 सारे भैन भरावां जय मसीह जय मसीह सब लोग लंगर के आ रहा लंगर